Cutting across straight to live visuals now coming in from the Sultanpuri police station where the FSL team has already reached. Our reporters on the ground to get you the latest details. But first, let's try and explain what's really happening on the ground. This comes just about 24 hours after the forensic officials had first inspected the car. This is yet another inspection that is being done by the FSL team at Sultanpuri police station, where you can see the FSL officials looking at the Baleno car that was involved in the accident. In fact, the FSL report, the preliminary report, essentially indicated that there were blood stains that were found from under the car closer to the axle of the wheel. That's where we're given to understand that the scooty got actually stuck the moment after it was hit. We'll try and go across to our reporters on the ground to get you the latest. Our reporter Anuj is there at the Sultanpuri police station. We'll try and go across to him to get us the latest details as to when exactly did it start, what is it that they are looking at right now. Let's go across to our reporters. Take us to the details that you're picking up. वहां पर पहुंची हुई है और ये जांच पड़ताल कर रही है, सीन को रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कैसे हो गया। तस्वीर एक बार फिर रोहित आपको दिखाएंगे कि अब तस्वीरें रोहित दिखाइए जरा कि कैसे पहले स्कूटी को बलेनो कार जो है वो टक्कर मारती। जी That's the latest details now coming in from the FSL team at the Sultanpuri police station. Let's a quick recap of what is it that we know so far. This is the second time that the FSL team is inspecting the car that was involved in the accident. The Baleno car in which 5 of the accused were present when the accident took place. Let me once again go across to my colleague Deepesh, who's joining us from Sultanpuri police station. कि आपको एफएसएल की टीम जो है वो डीसीपी को समझाती हुई नजर आ रही है, बताती हुई नजर आ रही है कि कैसे ये पूरा वाकया हुआ है। तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा होगा वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। दरअसल स्टार्टिंग कैसे हुई, यहाँ पर जब एफएसएल की टीम पहुंची थी, डीसीपी पहुंचे थे, सुल्तानपुरी थाने के जो टीम मौजूद थी, उस दौरान सबसे पहले ये समझा गया कार आखिर कैसे स्कूटी से टकराई होगी, उसके बाद स्कूटी किस दिशा में पलटी होगी और स्कूटी पर मौजूद अंजलि और निधि वो कैसे अलग अलग दिशाओं में गिरे होंगे। इसको लेकर यहां पर कहीं ना कहीं एक बार फिर सीन को रिक्रिएट करके समझा जा रहा है। एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई इस कार के नीचे दब जाए और वो 13 किलोमीटर तक घसीटता हुआ चला जाए और कार में मौजूद लोगों को इस बात की भनक ना हो या वो इसे इग्नोर कर दें या नजरअंदाज कर दें। क्या ये संभव है? उस चीज को भी यहां पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि खुद डीसीपी इस कार के नीचे अंदर गए और अंदर जाने के बाद उन्होंने लेट कर इस पूरी परिस्थितियों को समझा है। Well, in fact, as my colleague Deepesh was pointing out, that this started roughly about 20 minutes ago when the FSL team reached Sultanpuri police station. In fact, this is the second day when the FSL team is inspecting the Baleno car. There's a preliminary report that has already been accessed by Republic TV in which there is a clear indication of the fact that the bloodstains were basically found. But in the preliminary report, they say that Anjali's blood stains were not found from inside the car. Remember, that's the preliminary report that has come in. We'll have to get more details from the FSL to basically come to any sort of conclusion. But at the same time, as we speak right now, the FSL team being assisted by Sultanpuri police station officials right now. Remember, a lot of criticism that the Delhi police is essentially facing at this point in time, whether at all there has been a cover-up or not. With every passing day, there has been some sort of a twist or turn that's been taking place. Let's try and go across to our reporters on the ground to get us the latest details as the FSL team continues with the inspection of that killer car. कई किलोमीटर तक आप उस में फंस कर और घिसटते चले जाएं, इस चीज को कहीं ना कहीं एक ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कौन सा स्पॉट है अंदर, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें अंजलि अटकती है, उसके सारे कपड़े फट जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो 13 किलोमीटर तक घसीटती हुई चली जाती है। ये कहीं ना कहीं देखने की कोशिश अभी भी एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर कर रही है।
दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जो तमाम बातों का जिक्र निधि ने किया है, उन बातों में कितनी सच्चाई है, उस एंगल से भी अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है लापरवाही की, उस लापरवाही को लेकर भी जांच पड़ताल अब होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, अभी बलेनो कार आपको दिखाई दे रही है, उसके ठीक थोड़ा सा आगे आपको स्कूटी नीचे गिरी हुई दिखाई दे रही है। एफएसएल की जो अब टीम आई हुई है वो यहाँ पर अब देख रही है, समझ रही है, और साथ ही साथ जो डीसीपी हरिंदर सिंह हैं वो भी यहाँ पर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरी घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर एक बार वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब ये अब टक्कर हुई, उसके बाद कैसे स्कूटी पलटी, कैसे अंजलि अब इस कार के नीचे दबी और कैसे निधि दूसरी साइड गिरती है और वो फिर वहां से रवाना हो जाती है। लेकिन जब अंजलि इस कार के नीचे आती है तो वो 13 किलोमीटर तक कैसे घसीट कर जा सकती है, जब पहला पहिया आपके ऊपर से चढ़कर गुजर चुका हो और कार ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ट्राला है या बहुत बड़ा ट्रक है जो दूसरा पहिया न गुजरे और आप उसके बीच में कभी किसी स्थिति में फंस जाएं। छोटी सी कार, उसके बीच में इस तरह से फंस जाना और 13 किलोमीटर तक घसीट कर जाना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। और यही कारण है कि अब उस एंगल से जांच पड़ताल। रोहित जरा तस्वीरें एक बार फिर दिखाइए, डीसीपी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे कि वो एक बार फिर वहां पर देख रहे हैं कि आखिर एफएसएल के जो अधिकारी हैं, जो एफएसएल की टीम है, वो बैठकर बता रही है कि कैसे अंजलि अब इस कार के नीचे फंसी होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि डीसीपी खुद अब इस चीज को समझने के लिए, उन परिस्थितियों को जानने के लिए कार के नीचे लेटे थे। लेटने के बाद उन्होंने इन चीजों को समझा, देखा, परखा कि आखिर ये कैसे संभव है और अगर कोई कार के नीचे जाता है तो क्या दूसरा टायर उसे अब उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता है, और अगर नहीं गुजरा है तो फिर उतनी देर अंजलि जो है वो कार के किस हिस्से में फंसी रखी, और अगर वो फंसी है तो फिर 13 किलोमीटर तक का सफर कैसे तय हो गया, जिसकी जानकारी जो कार में मौजूद लोग थे या ड्राइवर थे उन्हें नहीं मिली। यही कारण है कि अब बिल्कुल बारीकी से इस पूरे अब मसले को समझा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स तैयार होंगी और उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। हर सच जो है वो उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर आप देखें, अभी परिस्थितियों को देखें तो यही समझ में आ रहा है कि जो कार का अगला हिस्सा है उसका लेफ्ट वाला जो साइड है उससे टक्कर होती है स्कूटी की और स्कूटी वहां पर गिर जाती है और स्कूटी के गिरने के बाद अंजलि जो है वो कार साइड गिरती है जिसके ऊपर से टायर गुजरता है और अंजलि बीच में रह जाती है। लेकिन दूसरे टायर का वहां से न गुजर पाना, अंजलि का बीच में फंस जाना, आखिर यह कैसे संभव है, इस चीज को अभी भी जो एफएसएल की टीम है इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। जो डीसीपी हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है और यही कारण है कि ये जो मिस्ट्री है वो अब गुत्थी के तौर पर नजर आ रही है जिसे सुलझाने का प्रयास हो रहा है। हर पॉइंट पर यहाँ पर बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है। जांच ये भी हो रही है कि कार में जितने लोग सवार थे उन्हें इस तरह की जानकारी क्यों नहीं मिली, क्योंकि आप एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी अगर क्रॉस करते हैं चलती हुई गाड़ी में तो आपको महसूस होता है, लेकिन उसके बाद आप किसी लड़की को टक्कर मारने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर आगे बढ़ जाएंगे और वो आपको महसूस नहीं हो रहा, तो ये भी एक सवाल है। दूसरा ये एंगल भी है कि आखिर आपको जब पता चला तो आपने गाड़ी आगे पीछे करके देखा, लेकिन जब आपने देखा उसके बाद भी आपने उतरकर उस लड़की को वहां से क्यों नहीं हटाया, ये भी एक जांच है। एक और एंगल ये भी है कि जब आपने गाड़ी को अब लड़की के ऊपर से गुजारा और लड़की बीच में फंस गई तो फिर वो किस अब स्थिति में फंसी, गाड़ी के किस पार्ट में फंसी, कैसे वो घिसटते हुए 13 किलोमीटर तक का सफर तय कर गई, आप लोगों को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये जो तमाम एंगल है वो अब सुलझाने की कोशिश यहाँ पर एफएसएल की टीम करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर देखिए गहनता से यहाँ पर बातचीत चल रही है। बातचीत में उन तमाम पहलुओं को समझा जा रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हो रही है और बिल्कुल बारीकी से हर एक एंगल को सुलझाने की कोशिश में यहां पर एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम जुटी हुई है। डीसीपी आपको नजर आ रहे होंगे जो बड़े गहनता से इस पूरे केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक पॉइंट्स को यहां पर नोट किया जा रहा है और उन पॉइंट्स को नोट करने के साथ ही ये भी समझने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है कि आखिर कहीं चूक तो नहीं रह गई, कहीं अब कमी तो नहीं रह गई। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि जो गाड़ी है, जो अब लड़की की स्कूटी है वो आपको अपोजिट साइड में पलटी हुई नजर आ रही है, यानी कि जो निधि है वो इसी साइड में गिरी है जिस साइड गाड़ी आपको नजर आ रही है और जो अंजलि है वो बलेनो कार के साइड गिरी हुई है। यही कारण है कि जो अंजलि है वो कार के अंदर दब जाती है और जो निधि है वो दूसरे साइड गिरी रहती है।